علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان شورکوٹ کے نواحی علاقے رستم سرگانہ میں سابق ایم پی اے مہر خالد محمود سرگانہ کے گھر پہنچ گئے۔ دورے کی وجوہات کیا تھیں بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال اپنے اس رپورٹ میں۔ شورکوٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نواحی علاقہ رستم سرگانہ میں سابق ایم پی اے مہر خالد محمود سرگانہ کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ سابق ایم پی اے مہر خالد محمود سرگانہ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا وریاں والا موٹر انٹرچینج پر استقبال کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کو ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے مہر خالد محمود سرگانہ، سابق صوبائی وزیر مہر اسلم بروانہ، مہر وجیہ اللہ بنگو کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ مختلف طریقوں سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم IMF کو خط لکھ رہے کہ ان کے ساتھ معاہدے نہ کریں۔ درست اپنی علاقے کے لیے خدمات ہیں۔ میں جب یہاں پر آیا ہوں تو میں جب موٹر وے سے نیچے اترا اور سارا راستہ میں مار صاحب کو یہ راستے میں دکھاتا ہے کہ اس وقت مجھے ستھرا پنجاب کی جو ٹیم تھی وہ بڑی شاندار طریقے سے کام کرتی فیلڈ میں نظر آئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے مزید کہا کہ میری لیڈرشپ کا مقصد بچوں کو ہنرمند بنانا ہے۔ میرا مہر خالد محمود سرگانہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ ان کے ساتھ جو ڈکیتی ہوئی تھی پولیس ملزمان کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ملزمان جلد سامنے لائے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال NTN نیوز شورکوٹ۔ شکر گڑھ میں تھانہ صدر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، جدید طریقہ تفتیش اور ہیومن ریسورس استعمال کرتے ہوئے بلائنڈ مرڈر کیس ٹریس کر لیا ہے۔ ملزم نے تیز دھار آلے سے اپنے ہی دوست کو قتل کر کے لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن شیخ سے۔ جی حسن، تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل حاضرہ، یہ تھانہ صدر پولیس شکر گڑھ کی جانب سے ایک کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے۔ شکر گڑھ کے نواحی گاؤں چھنی باغ والے میں پیش آنے والے بلینڈ قتل کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ SHO نوید ویرک اور سب انسپیکٹر اویس یعقوب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش استعمال کرتے ہوئے بلینڈ مرڈر کیس کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزم نے تیز دھار آلے سے اپنے ہی دوست کی شہرک کاٹ کر لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم مقتول کا دوست تھا اور قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ملزم نے معمولی بات پر اپنے ہی دوست کو قتل کیا تھا۔ پولیس تھانہ صدر نے ملزم کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے اور ملزم سے جو مزید تفتیش ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ DPO نارول ملک نوید کا کہنا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ جی شکر گڑھ پولیس تھانہ نے صدر نے ملزم کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے حسن شیخ۔ دوسری جانب پاک پتن پولیس نے بھی متعدد مقدمات میں مطلوب 4 ڈکیٹ گینگز کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے آلووں سے بھرا ٹرک، درجنوں موٹر سائیکلز، مویشی اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راؤ رمضان اجاز۔ پاک پتن پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن۔ گزشتہ ماہ کی کارروائیوں میں 4 ڈکیت گینگز کے 12 ارکان گرفتار کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید اقبال چدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان سے 2 کروڑ 66 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ڈائریکشن تھی کہ ہم نے پنجاب کو سیف کرنا ہے، منشیات اور جرائم سے پنجاب کو پاک کرنا ہے۔ پاک پتن پولیس نے 4 خطرناک ڈکیٹ گینگ کے 12 ارکان کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے پاک پتن میں مختلف وارداتیں کی، جن کی مجموعی رقم 2 کروڑ 66 لاکھ سے زائد مالیت بنتی ہے، جو محکمہ پولیس پاک پتن نے چوروں کو گرفتار کر کے برآمد کیا ہے اور آج اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا، جس پر انہوں نے پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب پولیس نے جہاں تقریب کرائی اور ہمارے موٹر سائیکل اور نقدی سامان دلوایا، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ گرفتار ملزمان سے برآمد مال میں آلو سے بھرا ٹرک، 23 بھینسیں، 31 موٹر سائیکلیں اور جدید اسلحہ شامل ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اجاز، NTN نیوز پاک پتن۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ چیچا وطنی اور ڈسٹرکٹ ساہیوال پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں کے دوران ناجائز اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں جنید ملک کی یہ رپورٹ۔
साहिवाल पुलिस और चीचावतनी पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान नाजायज असला मनशियात बरामद की गयी। 39 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में 3 किलोग्राम चर्स, 2 किलोग्राम हीरोइन और 547 लीटर शराब में 4 चालू भट्टियां बरामद हुई। 24 मुल्जिमान से नाजायज असला, 1 राइफल, 4 गन, 17 पिस्टल, 30 बोर बम मुतअद्दिद गोलियां बरामद की गयी। 33 खतरनाक इश्तहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। डीपीओ साहिवाल ने कामयाब कार्रवाइयों पर साहिवाल पुलिस की टीम्स को शाबाश दी और कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाएगी। जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज, चीचावतनी। कंजवानी से खबर यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला के मुबैना नारवा सलूक और दाजिदों के खिलाफ दर्ज की गई FIR के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिदे के दौरान तहसील इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के बिजनेस हब कंजवानी के ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की, जहां ताजरों ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताजरों का कहना है कि उनके साथ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया और कारोबारी अफराद के खिलाफ नाजायज मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जुमेरात को 12:30 बजे के करीब 2 नामलूम अफराद दाखिल हुए। उन्होंने जामिया तलाशी ली और मेरी चोरी की। एसी के पास हाजिर हुए। एसी साहबा ने ना दरवाज़ा खोला, ना शीशा डाउन किया, ना हमारी बात सुनी। उसके बाद वो धमकियाँ देते हुए यहाँ से चले गए और जो दुकानें, कपड़े, मनियारी की दुकानें और बुक डिपो इस तरह की ब्लॉक करके चले गए। उसके बाद हमारे खिलाफ एक FIR दर्ज कराई, जिसमें हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, जिसमें लफ्ज़ दहशतगर्द इस्तेमाल किया गया, जो कि नाकाबिले यकीन तौर पे मतलब कि गलत लफ्ज़ है। हम दहशतगर्द नहीं, हम मजदूर लोग हैं और हमें जानबूझ के उस लेवल पे लेके जाएगा जो हम मतलब कि नहीं चाहते कि उस लेवल पे हम जाएं। तो हमारा आला काम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद से ये मुतालबा है कि फील फॉर इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए। ताजर बिरादरी का कहना है कि अगर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में न लाई गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। अगला अमल ये है कि असी गढ़ वाले ताजरान और कंजवानी, रमेश शाह, जफर चौक, किलियां वाले इन्हां नाल साडी गलबात हो गई है। साडे मुतालबात ते अमल नहीं किया जाता तो फिर इंशाअल्लाह साडा जिहड़ा धरना और रमेशा चौक जोशी और बारपूर जड़ाना धरना सी। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज, फैसलाबाद। डस्का में दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार होकर जाम शहादत नोश करने वाले सब इंस्पेक्टर वार्डन मोहम्मद एहसानुल्लाह की 5वीं बरसी मनाई गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। देखते हैं शाहिद रियाज की रिपोर्ट। जी डस्का के मौजा साके का रहायशी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद एहसानुल्लाह, जिन्होंने 5 साल कब्र दौरान ड्यूटी हादसा का शिकार होकर जामे शहादत नोश किया, इनकी यादगार पर इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन नवीर ने अपनी टीम के हमरा फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की और मुख्तलिफ मुकातबा फिक्र की शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सदर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। एहसानुल्लाह शहीद की बरसी के मौके पर जिली व तहसील कोई पुलिस ऑफिसर शरीक नहीं हुआ। कैमरामैन टीम कैमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज, डस्का। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने लिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी अहकाम जारी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर कामरान। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने लिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर दर्जनों शहरियों ने पुलिस और दीगर इंतजामी मसाइल से मुतल्लिक अपनी दरखास्तें पेश की। RPO ने शहरियों की शिकायत को बगौर सुना और मुतअद्दिद दरखास्तों पर मौके पर ही DPO लिया को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने बाद मुकदमात के इंदराज का हुक्म भी दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए RPO ने DPO लिया की जानिब से बाकायदगी से खुली कचहरियों के इनेकाद को सराहा। या तो रेवेन्यू रिलेटेड होते हैं या क्राइम रिलेटेड होते हैं, तो जाहिर है उसके अंदर जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है। ठीक है, और ये जो हम सारा सिलसिला कार कर रहे हैं खुली कचहरियाँ का, उसी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं और जो हमारा आने का मकसद भी है वो CM के विजन के मुताबिक है, जिसमें लोगों को खुद एक्सेस करें और खुद वहाँ पे पहुँच के लोगों के डोर स्टेप के ऊपर कोशिश करें कि उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। आपने देखा बहुत से लोग यहाँ पे वो पेश हुए हैं जो कि एजेड हैं या ख़वातीन हैं जो कि अपने पर्दे की वजह से
या ज़्यादा ट्रैवलिंग होने की वसाइल की कमी की वजह से हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उस सिलसिले में डीपीओ साहबान वो अपनी तहसीलों में खुली कचहरियाँ कर रहे हैं और मैं बीइंग आरपीओ डिफरेंट अजला में जा रहा हूँ और वहाँ जाके ये खुली कचहरियाँ अपनी कर रहा हूँ। मकसद यही है कि लोगों को सुना जाए, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर के इस इकदाम को शहरियों ने सराहा और उम्मीद जाहिर की कि उनकी शिकायत पर जल्द अमल दरामद होगा। कैमरा टीम के हमरा मार कामरान सिंध, NTN न्यूज़, लिया। नाज़रीन, गफलत मौत की वजह बनती है। आरिफ आला में कम उम्र ड्राइवर खतरे की अलामत बन गए, हादसात में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक THQ अस्पताल में हादसात के सबक लाए जाने वाले जख्मियों में ज्यादातर तादाद बच्चों की है। मजीद डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हाजी उमर हसन बताएंगे। जी बिल्कुल, जो कम उम्र बाइकर हैं वो अपने लिए तो ख़तरा है, लेकिन वो दूसरों के लिए, जो शहरी हैं उनके लिए भी वो ख़तरा बनते जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पर जो हादसात का शिकार हुए जो पेशेंट है वो आ रहे हैं, उनमें से कम उम्र बच्चे हैं जो बाइक से टकरा जाते हैं, उनका वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर्थो सर्जन डॉक्टर शाहिद इकबाल भुट्टा साहब। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि वो उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी आप सही कह रहे हैं, हमारे पास जो ट्रामा की मेजर काजेज़ हैं उनमें एक जो 90% तक जो हमारे पास काज आ रही है वो मोटर बाइक्स एक्सीडेंट्स हैं, और इनमें जो ज़्यादा वजह इसकी होती है इमेच्योरिटी, यानी बच्चों को जब लोग बाइक्स देते हैं वो अनलाइसेंस्ड होते हैं, उनको रूल्स का नहीं पता होता और ओवरटेक कर जाते हैं और हादसात का शिकार होते हैं। हेड इंजरीज़ हो जाती हैं, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, कुछ इसमें जानलेवा भी शामिल होती हैं। इवन जो है ना वो 95% जो ट्रामा की काज है बच्चों के अंदर वो बाइक्स हैं। उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स जो है ना वो अनलाइसेंस्ड होते हैं बच्चे, उनको जो है ना बग़ैर देखे बाले, बग़ैर किसी ट्रेनिंग के उनको बाइक्स दे देते हैं। तो इसलिए वाले से मुझे ये पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, मेरा ये पैगाम है कि उनको पहली बात तो बाइक्स दें ही ना, ठीक है ना। अगर बिल फ़र्ज़ किसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या आप नहीं रुक सकते हैं, सोसाइटी में इस तरह है, तो उनको फिर ट्रेन करें, उनको हेलमेट्स दें, उनको जो है ना वो आप उनको रूल्स बताएं, ट्रैफिक के रूल्स बताएं, और ताकि हादसात से बचा जाए, कीमती जानें हमारी सेव हों, मुसीबतों से बचा जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ले डॉक्टर बुशरा साहिबा भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाला से जानने की कोशिश करते हैं। मैं THQ हॉस्पिटल आरिफवाला में बेहोशी की माहिर डॉक्टर हूँ। जी जैसा कि मेरे कुलीग डॉक्टर साहब ने बताया कि हम यहाँ पे डेली ऑर्थोपेडिक की लिस्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और इसमें बच्चे ज़्यादा हैं हमारे पास, कम उम्र बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो हादसात का शिकार होते हैं, बाजू टांगें उनकी फ्रैक्चर होती हैं और उम्र भर की मजदूरी का सामना होता है। ऑपरेशन के बावजूद भी जो है वो उनको मजदूरी का सामना हो सकता है। तो लिहाजा वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को बाइक ना दें, इंतहाई मजबूरी में उन्हें समझा के बाइक दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि आपने डॉक्टर की गुफ्तगू सुनी, उनका वालिदैन के लिए यही पैगाम है कि कम उम्र बच्चों को जो है वो बाइक ना दें, अगर वो दें तो उनको जो रूल है वो बताए जाएं ताकि वो खुद भी महफूज रहें और दूसरों की जानें भी महफूज रहे। जी दूसरी जानिब शोरकोट में शहरी ड्राइविंग लाइसेंस न बनाने पर बज़िद हैं। ट्रैफिक पुलिस शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मुतहरिक। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मंजूर हसन सयाल की इस रिपोर्ट में। शोरकोट में शहरी ड्राइविंग लाइसेंस न बनाने के लिए वज़ीद ट्रैफिक पुलिस शहरी के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फिर भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। इस हवाले से ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद गौस का कहना था कि रोजाना 50 के करीब मोटरसाइकिल सवारों को रोककर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। पिछले माह तकरीबन 1500 के करीब मोटरसाइकिल सवारों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये मोटरसाइकिल ज़्यादा इसके मूजब बनते हैं एक्सीडेंट का, क्योंकि ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं होती, इनको ट्रैफिक का शौर नहीं होता। उसके अलावा जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, बिलखसूस मोटरसाइकिल ड्राइवर हजरात के लिए जैसे कि बता दिया गया है कि 5 से 10 मिनट का टाइम है जिसमें उसका लाइसेंस बन जाता है। तो मेरी अवामुन्नास से यही रिक्वेस्ट है कि इसको कोई ऐसी सख्ती ना समझें या ऐसी कोई फटीक ना समझें कि हमारा लाइसेंस बन रहा है। तो लाइसेंस आपकी सेफ्टी है। एडिशनल IG मिर्ज़ा फरहान बेग
के अहकामात के मुताबिक हमने इधर मोटरसाइकिल के लाइसेंस की कैंपेन शुरू की हुई है, जिसमें हम डेली बेसिस पर 50 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ ID कार्ड की कापी ले आएँ और अपना लाइसेंस बनवाएं। ट्रैफिक पुलिस का अमला मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आगाही दे रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद गौस ने मजीद कहा कि शहरियों से अपील है कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं। कैमरा टीम कैमरा मंजूर लसंसियाल NTN न्यूज़ शोरकोट। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने रायविंड में तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए रायविंड इज्तिमा का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर तमाम SDPOs SHOs को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद तफसीलात हसन इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने रायवंड में तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मामूर तमाम SDPOs SHOs को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ करते हुए उनका कहना था कि शुरा को 3 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार पर मबनी चेकिंग और वॉक थ्रू गेट से गुजारने के बाद इज्तिमा में दाखिल होने दिया जाए। उनका मजीद कहना था कि सामान की चेकिंग भी बजरिया मेटल डिटेक्टर की जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाए। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को ब्रीफिंग देते हुए SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान का मजीद कहना था कि रायवंड इज्तिमा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। शुरा इज्तिमा में हिफाजती SOPs पर अमल करें। शुरा की रहनुमाई के लिए तबलीगी इज्तिमा में पुलिस हेल्प डेस्क भी कायम है। उनका मजीद कहना था कि पुलिस अफसरान और जवान शहरियों की जानो माल के लिए हमा वक्त कोशां हैं। शुरा की जानो माल की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ी जाए। कैमरामैन नवीद राजपूत के हमरा हसन इफ्तिखार NTN न्यूज़ लाहौर। उधर लियाकतपुर में इंतजामिया की कब्जा माफी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। खान बेला में कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया ने कीमती अराजी और मुतादिद दुकानों पर कब्जा किया हुआ था। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद गुलशेर से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लियाकतपुर में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ खान बेला में भरपूर कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली। खान बिला में सेंट्रल गवर्नमेंट की मलकियती अराजी मुतअद्दिद दुकान पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनती थी। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम लादिक खान ने जिला कौंसिल के अमले और पुलिस के हमरा खान बिला में कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। वागुजार कराई गई अराजी सरकारी तहवील में ले ली गई थी। तमीर शुदा दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत न बरती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुलशेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट करेंगे सिलावाली बड़ा रास्ता जामरा जंग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। सियासतदान वोट देने के लिए सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, इलेक्शन के बाद इलाके का रुख तक नहीं करते। मजीद तफसील जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कुलियार से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलावाली बरास्ता जामरा जंग रोड जो है इस पर मौजूद हूँ। तो ये सड़क जो है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इन गहरे गड्ढों की वजह से कई कीमती जानें जो हैं वो भी ज़्यादा हो चुकी हैं और वारदातों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या ख्याल है। जी बिल्कुल, ये अरसा दराज टूट फूट का शिकार है। रोड सरगोता जंग की बेनती तो होने की वजह तो सियासी लोग इतने आते हैं MLA MPA और सानू जिहड़ा है वो वादे करके दोबारा इलेक्शन जीत के तो दोबारा इस रोड वाल या इस इलाके वाल तवज्जो नहीं देते। तो साडा डिप्टी कमिश्नर सरगोता जी, इनका कहना है कि सियासी हजरात जो है वो इलेक्शन के दौरान तो आते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, लेकिन बाद में इधर कोई चक्कर भी नहीं लगाते। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और सियासी हजरात से मुतालबा किया है कि खुदा राज सड़क व सड़क तामीर करवाए जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कुलियार NTN न्यूज़ सिलावाली। नाज़रीन, गर्मियों की सौगात ठंडे मशरूबात की बेशुमार इकसाम मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन जिगर को ठंडा और दिल को फरहत बख्शने वाले मशरूब सरदाई का सानी नहीं। अलीपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया है कि स्टॉल पर हमाद रजा मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में। गर्मी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज पारा जो है वो 40 डिग्री से जो है वो ऊपर चला गया है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर तहसील अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में और मेन रोड पर जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है वो सरदाई के जो है वो जगह जगह स्टॉल जो है वो लगा दिए गए हैं। सरदाई जो है जिसमें चीनी, जीरा और उसके अलावा इलायची, 4 मगज, बादाम और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ अशिया डाली जाती है, जिसके साथ ज़्यादा जो है
उसको मशीन के पास जो है रगड़ाई की जाती है। रगड़ाई करने के बाद जो है एक पानी की महलूल डालने के बाद जो है एक मशरूब तैयार होता है जिसको सरदाई का नाम जो है वो दिया जाता है। सरदाई जो है वो बहुत ठंडी होती है, जो गर्मी की शिद्दत को जो है कम करने के लिए जो है वो कारगर साबित होती है। यहाँ पर जब हमारे दुकानदार से बात हुई तो उनका ये कह रहा था कि गर्मी की शिद्दत जो है दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पर जगह जगह हमारे तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। जो यहाँ पर कस्टमर हजरात आते हैं वो सरदाई को जो शौक से पीते हैं ताकि उनकी गर्मी की शिद्दत में कमी ला जा सके और ये जिगर को जो है और जो दिल है उनको ठंडक बचती है। जी, टैलेंट की तलाश पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों ने चकवाल का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शोबजात में अपना लोहा मनवाते चकलाल के नौजवान अब फिल्मी स्क्रीन पर भी जलवा अफरोज होंगे। मजीद जानते हैं, चकवाल से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली नाइक। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चकवाल की तो बिलाशुबा जो चकवाल की सरजमीन है, यहाँ पर बसने वालों ने वो जो है अगर फिल्म इंडस्ट्री का नाम ले या टीवी ड्रामों का, तो उन्होंने बहुत सारा नाम रोशन किया है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो चकवाल के हैं, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया और टीवी ड्रामास में भी काम किया। जवानों की सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि ये भी चकवाल का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। इनसे मजीद जानते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं ऐसी, कौन कौन सी सलाहियतें अभी तक इन्होंने देखी हैं। तो मैं इनकी दावत पे मैं आया, मैंने देखा और वाकई टैलेंट के लिहाज से चकवाल बड़ा जरखेज है। चकवाल को सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो लोग एवेन्यू स्टूडियोज पे आते हैं या इस्लामाबाद का रुख करते हैं, कराची का रुख करते हैं। तो राजा तनवीर साहब के प्यार में और यहाँ के लोगों के टैलेंट को देखते हुए मैं वो प्लेटफॉर्म उठा के चकवाल में ले आया हूँ। तो